Hello friends, welcome to NEEV. So after discussing the first 4 papers of our HCS Prelims mock test series, today we are starting with the discussion of test number 5. In the part 1, we will be discussing the first 50 questions, and in the next video, which will be the last video of this HCS Prelims mock test series, we will be discussing the next 50 questions. So let's start with question number 1. Which among the following districts of Haryana was renamed New in 2016? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके हरियाणा स्पेसिफिक जीके से फ्रेम किया गया है. नूह किस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया था 2016 में? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवात. अब आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 22. और 22nd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था हरियाणा का, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए. Moving to the next question, which portfolio was held by Abdur Rab Nishtar in the interim government of 1946? The correct answer is C, Post and Air. अब लेबर पोर्टफोलियो किसके पास था? जगजीवन राम के पास. कॉमर्स किसके पास था? आई चुंडवीगर के पास. और वर्क्स माइंस एंड पावर किसके पास था? CH भाभा के पास. Moving to the third question, Kanchipuram University of Ancient India, which achieved a great name under the rule of Pallavas, was a center of learning for. The correct answer is D, all of the above, Hinduism, Jainism and Buddhism. ये कहाँ पे थी यूनिवर्सिटी? तमिलनाडु में. Moving to the next question, what is the objective of the Replace Action Framework of the World Health Organization? Replace जो एक्शन फ्रेमवर्क है WHO का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा C, to eliminate industrially produced trans fatty acids from their food supplies across the globe. रिप्लेस की फुल फॉर्म क्या होगी? RE से बनेगा अपना रिव्यू, P से बनेगा प्रमोट, L से लेजिस्लेट, A से असेस, C से क्रिएट और E से एनफोर्स. बन गया अपना रिप्लेस. Moving to the next question, which of the following is the objective of the Hifazat campaign launched by Haryana government? So correct answer होगा B, to create awareness against child sexual abuse. Moving to the next question, which operation was conducted by India to evacuate people including its citizens and Afghan partners from Afghanistan? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति. तो जब आपने देखा जब अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया तो जो इंडियंस थे वहाँ पे स्टक हो गए थे, तो उनको निकालने के लिए, उनको सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति. अब ऑपरेशन गंगा क्या था? जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो यूक्रेन में भी कुछ इंडियंस फंस गए थे, तो वहाँ से अपने सिटीजन्स को सेफली निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन गंगा. ऑपरेशन राहत क्या था? 2015 में ऐसा ही एक ऑपरेशन येमेन से अपने इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. ऑपरेशन संकट मोचन क्या रहेगा कि साउथ सूडान में जो इंडियंस फंसे हुए थे कुछ साल पहले, उनको इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. राहत क्या था? येमेन से, और गंगा क्या था? अपना यूक्रेन से. Going to the next question, question number 7. In India, inland fisheries are fully managed by state governments, but marine fisheries are managed by. Correct answer is D, central government and coastal state or union territories governments. Question number 8. Which of the following countries is the largest producer of cobalt? The correct answer is B, Congo. Going to the 9th question, river ranching is a form of aquaculture in which a population of a fish species is held in captivity for the first stage of their lives. River ranching क्या होता है ये आपने देख लिया. It was introduced as a special activity under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि हमारी रिलेटेड है ब्लू रिवोल्यूशन से. Moving to question number 10, which among the following rulers had instituted a system by which the cultivated area was measured and a central schedule ray was drawn up, fixing the dues of the peasant crop-wise on the basis of productivity of land? The correct answer to this question is A, option शेर शाह. ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया? आपकी क्लास 11th की जो सतीश चंद्रा मेडिवल इंडिया की NCERT है उसके चैप्टर नंबर 13 से. Going to question number 11. The Eastern Dedicated Freight Corridor will pass through 21 districts of 6 states. Which of the following districts of Haryana will it pass through? The correct answer is A, Ambala and Yamunanagar.
अब दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि वो 6 स्टेट्स कौन से हैं जिससे पास कर रहा है। तो पहला स्टेट है पंजाब, फिर है हरियाणा, फिर है यूपी, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है बिहार और फिर है झारखंड। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऑप्शन में पूछ ले कि इनमें से कौन से स्टेट से पास नहीं करता है, कौन से स्टेट से करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 11। पार्ट 11 में हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूट नहीं आता है। पार्ट 11 में क्या आता है? द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स किस पार्ट में आते हैं? ये आते हैं हमारे पार्ट 12 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वोल्बाचिया बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीज अकर नेचुरली इन एडिस एजिप्टी मॉस्किटो स्पीसीज। ऐसा नहीं है, उनमें नेचुरली अकर नहीं करते हैं। अब जो ये हमारा अभी मॉस्किटो न्यूज़ में आया है, या अभी हमारी स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो स्पीसीज, ये किस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेंगू डिसीज़ के लिए। और ये जो हमारा वोल्बाचिया बैक्टीरिया है, ये मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक माइक्रोब है और ये शायद वर्ल्ड का सबसे कॉमन रिप्रोडक्टिव पैरासाइट है बायोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 14, पंजशीर वैली, ढैला डैम एंड बागराम एयरफील्ड इन न्यूज़ आर रिलेटेड विद ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान क्राइसिस जब हो रहा था, जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, तो उस समय पे ये सब चीज़ें, ये सब वहाँ की लोकेशंस न्यूज़ में थी। किसी में बॉम्बार्डमेंट हो रहा था, किसी में कुछ, तो वो लोकेशंस वहाँ से पिक करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम टू एनेबल शेयरिंग ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल्स विद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑप्शन नंबर सी, UNDP एंड OECD। ये किस लिए बनाया गया है? ये प्रोग्राम जो है, ये बनाया गया आपका टैक्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कि जो आयकर विभाग से जो चोरी रहती है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो टैक्स की चोरी की जाती है, टैक्स एक कंट्री का प्रॉफिट दूसरी कंट्री में शेयर करके, तो उसको सबको नॉलेज को रखने की, उस ऑडिट की जानकारी को एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ शेयर करे, उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया। और ये किसका इनिशिएटिव है? UNDP एंड OECD का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिवाइस MB टैग डेवलप्ड बाय IIT रोपड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिकॉर्ड रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो टैकल हो सकेंगी, वेस्टेज रिड्यूस होगा, कॉस्ट सेव होगी और हमारे पेरिशेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, श्रेष्ठ स्कीम aims to uplift the socio-economic status of the scheduled caste people by providing high quality education to their children in best private residential schools in the country. It has been developed by Ministry of Social Justice and Empowerment, option number D. Moving to question number 18, which of the following pairs is incorrectly matched? The correct answer is B, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल। बेसिकली ये MP में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है हमारा बिहार में। Question number 19, agriculture export policy which was brought in 2018 sets out a target of how many billion US dollar by 2022? 60 plus billion US dollar by 2022. The correct answer is option number A. Moving to our next question, which among the following is the 22nd district of Haryana? The correct answer is C, Charkhi Dadri. 21, which of the following pairs is incorrectly matched? The correct answer is B, policy of ring fence जो है ये 1800 to 1813 नहीं थी, ये थी 1765 to 1813। ये पॉलिसी हमें कहाँ पे दिखी? ये हमें दिखी वॉरेन हेस्टिंग्स की जो वॉर्स थी अगेंस्ट मराठाज एंड मैसूर, उसमें ये दिखी हमें। और इसकी एम क्या था कि कुछ बफर जोन्स को क्रिएट कर लिया जाए अपनी कंपनी के फ्रंटियर्स को डिफेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज बी, सिंगल सिटीजनशिप। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन से वो कहाँ से बोरो किया गया? वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। जो जुडिशियल रिव्यू ये कहाँ से किया गया? ये किया गया USA की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो केवल जो बी है वो UK से किया गया। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एका मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज सी, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमारे से। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक गांधी, शौकत अली एंड मौलाना आज़ाद एड्रेस द मूवमेंट। ऐसा नहीं था दोस्तों, इन्होंने जो ये मूवमेंट था ये एड्रेस नहीं किया था। एका मूवमेंट का एम क्या था कि जो
रिफ्यूज़ल टू पे मोर देन रिकॉर्डेड रेंट, और जो एक तो जो रिकॉर्डेड रेंट है उससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे, और जो पे भी करेंगे उसकी भी हमें स्लिप चाहिए होगी। और ये नजराना जो था, जिसको बॉन्डेड लेबर कहते थे, वो भी करने से इन लोगों ने मना कर दिया था। ये लखनऊ में स्टार्ट हुआ था और फिर आसपास के एरियाज़ में स्प्रेड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी साइट्स इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव। टाटा पानी, पूगा वैली, जलगांव, बाक्रेश्वर एंड टूवा, सभी के सभी हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Moving to the next question, question number 26. Which among the following Indian states is the largest producer of groundnut? The correct answer is C, Gujarat. Question number 27. Which of the following statements is incorrect? The correct answer is B. Article 2 empowers the president. Basically दोस्तों president ही parliament को empower करता है to admit into the Union of India और establish new states. तो B statement हमारी wrong हुई, इसलिए हमारा correct answer होगा B. Which of the following states has the maximum of the 12 ज्योतिर्लिंगाज इन इंडिया? सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंगाज कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में हमारे। कितने महाराष्ट्र में? 3। अब बाकी के 9 कहाँ पे हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। Going to question number 29, which of the following statements is incorrect about वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937? अब जो हमारी वारधा स्कीम थी, ये किस कमेटी के बेसिस पे आई थी? ये हमारी आई थी जाकिर हुसैन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे, या उन्हीं की, जाकिर हुसैन की ही ये स्कीम थी। अब इसमें गलत कौन सा स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी। दिस स्कीम फाइनली गॉट अप्रूव्ड एंड वाज इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन अक्टूबर 1939। बेसिकली इस स्कीम में कोई खास डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया था, क्योंकि स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था, तो इस वजह से ये जो स्कीम थी ये बस पेपर पे रह गई, इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बायो रेमिडिएशन? द करेक्ट आंसर इज बी, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नेशनल पार्क्स ऑफ हरियाणा? द करेक्ट आंसर इज सी, 3rd and 5th ओनली। कालेसर और सुल्तानपुर जो हैं ये दोनों हरियाणा के हैं। मुकुंदरा नेशनल पार्क कहाँ का है? राजस्थान का है। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ का है? ये हमारा एमपी का है। तो अगर हमें बाकियों के बारे में पता है तो हमारा एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हरियाणा के नहीं भी पता है, हमें बंधवगढ़ भी पता है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारा 50-50 पे गेम रह जाएगा। अगर हमें चंदोली पता है तो भी हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एलिमिनेशन से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। Which of the following statements is incorrect about SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication? So correct answer होगा दोस्तों D. It was founded in 1983, not. It was founded in 1973. Incorrect पूछ रहा था हमारे से, तो इसलिए हमारा correct answer होगा D. Which of the following pairs is incorrectly matched? 33 का आंसर होगा C. Indian Institute of Tropical Meteorology is not in Chennai, it is in Pune. क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेज द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? सो कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माउलिंग नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में नहीं, वो कहाँ पे है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। Moving to question number 36, which of the following eminent jurists and constitutional experts called the preamble as the identity card of the constitution? ये किसने बोला था? एन के पालकी वाला जी ने बोला था, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सी। पीपरावाहा, एंचे मोनेस्ट्री, नागापट्टिनम, रत्नागिरी, पांडावलेनी केव्स, ये पांचों की पांचों ही हमारी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट VPA was designed to better control the vernacular press and effectively punish and repress seditious writing. Under VPA मतलब अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट, मतलब वो पूछ रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर में किस किस न्यूज़पेपर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ऑल ऑफ द अबव। चारों ही न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, सोम प्रकाश, भारत में ही, डक्का प्रकाश और समाचार के अगेंस्ट VPA के अंडर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कवच? It is the indigenously developed train collision avoidance system, right? It is built to help the railways achieve the goal of zero accidents, correct?
इट इज़ डेवलप्ड बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलेबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री. करेक्ट. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है. Going to the next question. Question number 40. Which among the following are the criteria to recognize startups by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT under the Startup India? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इनोवेटिव एंड स्केलेबल, ओरिजिनल एंटिटी, एनुअल टर्नओवर, कंपनी टाइप. चारों ही क्राइटेरिया हैं DPIIT के स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करने के अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम. Question number 41. Which of the following statements is incorrect? The correct answer is A. Nuclear fusion produces highly radioactive fission products. Basically, it's not nuclear fusion but nuclear fission that produces highly radioactive products. Question number 42. Which of the following statements is incorrect? The correct answer is C. जो हमारा Citizenship Act of 1955 है, that provides 5 ways of acquiring citizenship and 2 ways of losing. Basically it's not 2, it provides 3 ways of losing. कौन कौन से 3 ways हैं? renunciation, termination and deprivation. Going to the 43rd question. Who among the following economists advocated a complete severance of India's economic subservience to Britain and the development of an independent economy based on modern industries? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल कौन कौन थे. इसका करेक्ट आंसर होगा ए. दादा भाई नरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, महादेव MG रनाडे, RC दत्त. चारों के चारों थे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 44. विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अरेबिस्की मेथड यूज्ड इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. यूज ऑफ जियोमेट्रिकल वेजिटल ornamentation characterized by a continuous stem which split regularly. ये आपका क्लास 11th मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया सॉरी, सतीश चंद्रा से क्वेश्चन बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 45. कैरोलिना बेलाव्स्का फ्रॉम पोलैंड won the Miss World 2021. Who among the following was the first Indian to win this award? The correct answer is रीता फारिया. अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये भी बन सकता है कि आज तक कितनी इंडियंस ने अवार्ड जीता है? 6. फर्स्ट रीता फारिया थी, जीता डायना हेडन ने भी है, ऐश्वर्या राय ने भी है, युक्ता मुखी ने भी है. लेटेस्ट किसने जीता है? 2017 में मनुषी छिल्लर. Question number 46. Recently, Shinzo Abe was assassinated in Nara city while he was campaigning for the upcoming elections. He was the former prime minister of which of the following countries? अभी पिछले वीक आपने देखा कि जो हमारे शिंजो अबे थे, इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत वेल विशर थे इंडिया के, इनको असैसिनेट कर दिया गया जब ये एक इलेक्शन रैली कर रहे थे. ये कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? जापान के. क्वेश्चन नंबर 47. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज इफेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 40. DPSP में ये प्रोविज़न है. काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 48. द यूनिट ऑफ ह्यूमन सिस्टम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड. अब आपको शायद एकदम से नेफ्रॉन लगे, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन. बी. नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है? किडनी की. Question number 49. On July 7, 2022, India got elected to Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. How many times before this has India been a member of ICH committee? The correct answer is 2. तो अगर इससे पहले 2 बार हुआ है, तो अभी जो जुलाई 7 में हुआ, ये कौन सा बार है? 3rd टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है अभी 2022 में. Moving to the last question of the day. Which of the following best describes zero budget natural farming? The correct answer is C. A method of chemical free agriculture drawing from traditional Indian practices. ये एक perfect example है going back to our roots का, कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी आगे आ जाएं, जाना हमें वापस अपने रूट्स पे ही पड़ेगा. तो दोस्तों आज हमने पार्ट 1 कवर किया टेस्ट नंबर 5 का. अब इस प्रीलिम्स की जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ थी 5 टेस्ट की, इसकी बस एक वीडियो पेंडिंग है जिसमें हम इसी टेस्ट 5 के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका 24 जुलाई, जिसमें अभी 6-7 दिन बचे हैं, 24 जुलाई 2022 को जो आपका HCS का प्रीलिम्स होने वाला है, उससे पहले जो हमारी 10 वीडियोज़ आई हैं 5 मॉक टेस्ट की,
उनको देखिए और 500 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस रेप्लिकेट होते हैं वो आपके गलत ना हो, प्लस आपको एलिमिनेशन समझ में आए, प्लस आपके 500 क्वेश्चंस के थ्रू कम से कम 1000 टॉपिक्स कवर हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।